محترم ناظرین، آپ کا میزبان سید قربانی آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہے لائف ٹی وی کی نعمت رمضان نشریات میں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے انبیاء کا سفر، بہت ہی بابرکت سفر ہے جو ہم نے جو ہے پہلے رمضان میں شروع کیا ہوا ہے. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر جو ہے 5 رمضان میں شروع کیا تھا پارشلی، اور پھر 6 رمضان 7 رمضان اور آج ماشاء اللہ 8واں ہوتا ہے، 8واں رمضان ہے. تو ہم ان کے سفر کو جاری رکھے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ویسے بھی قرآن میں سب سے زیادہ انبیاء کا ذکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. تقریباً 70 جگہوں پہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر آیا علیہ السلام کا. اور سورہ البقرہ میں اگر آگے چل کے بھی آپ کو سنا بھی میں سناؤں گا، بتاؤں گا بھی جو سورہ البقرہ کا نام البقرہ کیوں رکھا گیا، وہ گائے کی وجہ سے بچڑے کا قصہ ہے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے. وہ بھی آپ کو آگے آ کے میں آپ کو بیان کروں گا. تو جیسا کہ میں تھوڑا سا ناظرین کے لیے تھوڑا سا ایک فیڈ بیک دے دیتا ہوں جو سکتا ہے کل دیر سے ہم نے جوائن کیا ہو، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فرعون سے جان چھڑا کے بنی اسرائیل کو 5-6 لاکھ افراد نفوس میں مشتمل تھے، ان کو لے کے انہوں نے دریا نیل کو عصا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا انہوں نے عصا کو مارا، دریا تو رخت ہوا، 2 پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام خیریت سے عافیت سے اپنے پورے بنی اسرائیل کو لے کے اس میں سے نکل گیا. اور فرعون نے جب یہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نکل گئے تو اس نے بھی اس کے اندر داخل ہوا، اور جب اس کا پورا لشکر وہ داخل ہو گیا تو اللہ کے حکم سے وہ جو پانی کی دیوار تھی وہ سب کھڑی ہوئی تھی اور بیچ میں راستہ بنا تھا دریا نیل میں، تو وہ دونوں پانی اس سے مل گئے اور فرعون اپنے لشکر شدید تک ہو گئی. تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ دوسری طرف پہنچے تو پھر اب انہوں نے ارادہ کیا کہ کس طرف سے جو ہے وہ راستہ اختیار کریں. تو وہ جس میں آپ کو بیان کیا وہ بیابان شور سے لے کے وہ جو ہے سینا کی طرف روانہ ہوئے. اور جب سینا میں پہنچے تو ان کے جو ساتھ تھے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل، تو انہوں نے بت خداؤں کو دیکھا، اور وہ بت خداؤں کو دیکھ کے پھر ان کے اندر وہ جو سوئی ہوئی چنگاری تھی پھر اٹھ گئی، جو دب گئی تھی تھوڑے عرصے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھتے ہوئے کہ موسیٰ ہمیں بھی ان جیسے بت بنا دے. تو اس پہ مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان یاد ہے جو قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد ان سے بول دیجیے کہ یہ جو ہے ابھی مسلمان ہوئے ہیں اسلام میں، لیکن ان میں ابھی دین اس کے اندر دین رازق نہیں ہوا، دین داخل نہیں ہوا. تو ابھی وہ مسلمان تو ہو گئے تھے نام کے، لیکن ابھی ان کے اندر دین پراپر داخل نہیں ہوتا، تو وہ ٹامک ٹول کر رہے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہ بھی موسیٰ علیہ السلام ان کو جو ہے ہمیں بھی اس قسم کی بت بنا دیں کہ وہ بتوں کی جو ہے پوجا میں اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے تھے. تو ویسے بھی اگر قوم پرستی کا مظاہرہ جو اگر آپ دیکھیں ان کا، اگر آپ دنیا کی تاریخ میں اگر نقشہ کھینچیں تو تقریباً 450 سال مصر کے جابر بادشاہ اور حکمران تھے، اور مصری قوم کے اوپر قابض رہے، انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا. اور اس مردہ قوم میں بجلی کڑک اور آفتاب کی روشنی کی طرح اس کی طرح محمد موسیٰ علیہ السلام کی ہستی سامنے آئی، اور اس نے صدائے حق اور اعلان ہدایت سے تمام قلم رو اور باطل و الزام اور جوان ظلم کو فنو بھونچال پیدا کر دیا. اور دنیا کی ایک زبردست جو ہے طاقت کے مقابلے میں اعلان کر دیا کہ میں خدا واحد کا رسول اور اچھی ہوں، تجھ کو ہدایت کی پیروی اور مظلوم امام کی آزادی کا پیغام سنانے آئے ہوں. فرعونی طاقت نے ہمیں تمام مادی اسباب کے ساتھ اس کو مقابلہ کرتے رہی، مگر ہر مرتبہ شکست کا منہ دیکھتی ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے بیان فرمایا کہ فرعون نے اپنے ہر بار استعمال کر لیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست نہیں. جس کا ذات ہے اس میں خدا کی نشیت شامل تھی ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو. اور آخری بازی میں کی کامیابی کہ جب اس نے اپنے بازیگروں کو، نجومیوں کو اور کاہنوں کو بلایا، اور اس جشن کے دن سب کے سامنے وہ سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے وہ خود ہی اپنے جال میں آ رہے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا تھا اس نے اژدہے کا روپ اختیار کیا، اور سارے وہ جو سانپ اور اس نے بنائے تھے کاہنوں نے ان کو کھا گیا، تو اس کو شکست ہو گئی. اور اس نے جو ہے نا قوم کے اوپر جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوبارہ سے اس نے، اب آدمی شکست کھایا جاتا ہے تو یا تو اپنی ہاتھ تسلیم کر لیتا ہے، لیکن جب مغرور انسان ہوتا ہے وہ پھر سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، شکست تو کھا گیا ہوں، دل سے تو اس کو پتا ہوتا ہے شکست کھا گیا، لیکن وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے میں اس کی جو ہے نا وہ ایگو پرابلم جس سے کہتے ہیں
اس کو تھی تو فرعون کو بھی ضرورت ہے, ایک اتنا بڑا بادشاہ تھا, اتنا عرصے سے حکمران تھا, اس کے اندر ایگو پرابلم تھی, تو وہ کیسے اپنی شکست مان لیتا. تو اس نے پہلے میں آنے سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا اور ان کی قوم کو مظالم تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام لے کے اپنی قوم کو وہاں سے نکل آئے. تو بنی اسرائیل جو تھے وہ بہت ہی ضدی قوم تھی. جیسے آپ کو ایسے جا کے پتا چلے گا, اگر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر وقت پیچھے پڑے رہتے تھے, جائیے اللہ تعالیٰ سے ایمان کے لیے آئیے, جائیے اللہ تعالیٰ سے ایمان کے لیے آئیے, جائیے اللہ تعالیٰ سے ایمان کے لیے آئیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ضد کے آگے جا کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مراتی یافتہ قوم تھی, من و سلوہ بھی ان کے جو تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی بات جو ہے رد نہیں کرتا تھا, پیغمبر کی بات تھی. تو بنی اسرائیل نے جب بحر کلثوم مثلا کو پار کر کے جس سرزمین کا قدم رکھا, یہ عرب کی سرزمین تھی, مطلب وہ اس بحر کلثوم کو پار کر کے وہ عرب میں آ گئے جو کلثوم کے مشرق میں واقع ہے. یہ لفظ بے آب و گیا میدان ہے, مطلب صحرا سینا میں داخل ہو گئے, اور جو رات کے زمانے میں بیابان شور سینا وادی سینا کے نام سے مشہور ہے, اور طویل اور طور تک اس کا دامن وسیع, کوئی طور جہاں کے موسیٰ علیہ السلام تو شرفات اللہ تعالیٰ جہاں کلام ہونے کا, تو وہاں وہ کوئی طور بھی اسی وادی میں ہے. یہاں شدید گرمی پڑتی ہے اور دور دور تک سبز اور پانی کا پتہ نہیں. اس وادی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, سینا کی وادی کا, یہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کراس کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے جب کراس کیا تو جب فرعون نے ان کو نکالا تھا مصر سے, اور ان کے ننگے پاؤں اور ان کے جس طرح انہوں نے ہمت استقلال کے ساتھ کراس کر دیا اور پہنچے, اور میں نے آپ کو واقعہ پہلے بتا چکا ہوں. دوسری دفعہ موسیٰ علیہ السلام اب اپنی قوم کے ساتھ وہ صحرا سینا کو کراس کر رہے ہیں. شدید گرمی میں اس لیے بنی اسرائیل گھبرا اٹھتے ہیں, تو بنی اسرائیل جو ہے وہ گھبرا گئی گرمی سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فریاد کرنے لگے, ہم پانی کہاں سے پئیں, ہم تو پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے, یہاں تو پینے کے لیے پانی قطرہ بھی نہیں ہے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ اعلیٰ میں التجا کی, وہی الہی نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تکمیل ارشاد کی تو فوراً 12 چشمے ابل پڑے. 12 چشمے ابل بننے کا جو واقعہ ہے اس کی بھی ایک پیچھے ایک روایت ہے, کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے, اور وہ ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے چشمے سے پانی پینا چاہتا تھا. وہاں بھی ان کو ایگو پرابلم کا مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ چلو 12 چشمے ان کی اثر سے ٹوٹ پڑے تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پی لے, لڑائی جھگڑا نہ. تو فوراً 12 چشمے ابل پڑے, اور بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے جزے جو چشمہ جاری ہو گیا. بنی اسرائیل کو جب اس طرح سے گناہ ہو گیا تب کہنے لگے پانی کا تو انتظام ہو گیا. اب کسی نے کہا ہے کہ انسان کسی حال میں کچھ نہیں رہتا, اب پانی تو مل گیا ہم کو. انہوں نے کہا موسیٰ پانی کا انتظام تو ہو گیا, لیکن زندگی کے لیے صرف یہی تو کافی نہیں ہے. اب ہم خالی پانی تو نہیں پی سکتے, ہم کو تو بھوک بھی لگی ہے, اب کھائیں گے کہاں سے, یہاں تو کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی, لگ صحرا ہے, یہاں تو پتہ بھی نہیں ہے, ہم کھائیں کیا, پانی تو ہم نے پی لیا, سیراب ہو گئے پانی پی پی کے. اب موسیٰ علیہ السلام کھانے کا بھی بندوبست کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول ہوئی, پریشان نہ ہو, ہم ویسے سب انتظام کی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دلاست دی, پریشان نہیں ہو, ہم آسمان سے جو ہے تمہارے لوگوں کے لیے من و سلوہ جس کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تو وہ ہم اتار دیتے ہیں. اور پھر آج صبح کے رات بیت گئی اور صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا زمین اور درختوں پر جگہ جگہ سفید اولے کے دانے کی طرف چھپنے کی صورت میں آسمان کی کوئی چیز برس کر گر رہی ہے. کھایا تو نہایت شیریں حلوے کی مانند تھی. یہ من تھا. صبح اٹھی تو انہوں نے دیکھا زمین سے کوئی چیز برس رہی ہے اور وہ بہت ہی میٹھی ہے, شبنم کی صورت میں کوئی چیز برس رہی ہے. اور جب انہوں نے کھایا تو وہ میٹھا حلوہ جو ہوتا ہے اس قسم کی لگی شہد ٹائپ کی, تو یہ من تھا. اور دن میں تیز ہوا چلی اور تھوڑی دیر میں بڈروں کے گول آ کر زمین کو اترے اور پھیل گئے. اور دن میں اللہ تعالیٰ نے کو تیز ہوا چلی تو بٹیر جو تھے صبح صبح ان کو من کھانے کو ملا, اور دن میں جو شہد کی طرح جو میٹھا تھا, اور دن میں جب ہوا چلی تو بٹیروں کو گول آ کے زمین پہ اترے, اور بنی اسرائیل نے بآسانی ان کو ہاتھوں سے پکڑ لیا اور بھوک میں کھانے لگے. تو بنی اسرائیل کو مزے آنے لگے, پانی بھی اللہ کے حکم سے مل گیا, من بھی مل گیا ان کو صبح سے میٹھا, اور اس کے بعد ان کو دوپہر میں بٹیر بھی مل گئے. بنی اسرائیل جو ہے تو یہ اس کو سلوا جو کہتے ہیں, تو ہم ملا کے اسے کہتے ہیں من و سلوا. جیسے من و سلوا کی ایک اصطلاح ہے, تو وہی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ من جو تھا وہ شہد کی طرح صبح صبح جو ہے آسمان سے اللہ نے رنگ کو اتارا, اور دوپہر میں جب بٹیر وہ آئے تو انہوں نے بٹیروں کو گھوموں میں کھایا, اس کو کروا کہتے ہیں. تو یوں من و سلوا کی اصطلاح جو کریٹ ہوئی. اس طرح روزانہ بغیر کسی کم رحمت کے تکلیف کے
इनको दोनों नेमतें जो है मिलने लगी, मन भी आने लगा, सलवा भी आने लगा। लेकिन खुदा ताला ने तो मूसा अलैहिस्सलाम की मार्फत बनी इसराइल को तंबीह कर दी थी, तभी जरूरत के मुताबिक बनो सलवा का काम में लाएं और दूसरे दिन के लिए जखीरा न करें, और हम तो उनको रोजाना नेमत अदा करेंगे। तो वही अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू बताया, वही के थ्रू कि अपने लोगों से कह दो बनी इसराइल से कि हम रोजाना तुम्हें रिस्क पहुंचा रहे हैं, तो इसको जखीरा अंदोजी नहीं करो। आप देखें कुरान जखीरा अंदोजी कितनी ममानियत है कि आप जखीरा अंदोजी ना करें। आपको जो अल्लाह ताला दे रहा है आप उसको खाएं और उसको जखीरा अंदोजी ना करें। तो ये बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह का हुक्म आया वहीं से, जब तुम्हें रोजाना ताज़ा ताज़ा खाना खाने को मिल रहा है तो तुम्हें जखीरा करके कल का बासी खाने की जरूरत है, रोजाना ताज़ा ताज़ा खाना खाओ। तो खाने पीने की जरूरियात की फराहमी से भी इत्मीनान हो गया था कि बनी इसराइल तीसरा मूसा इसराइल को अभी भी चाय नहीं था उनको। पहले उनको पानी चाहिए था वो मिल गया, फिर उनको मन चाहिए था वो मिल गया, फिर सलवा चाहिए था वो मिल गया। अब उनको एक नई अदा सूझी। अब बनी इसराइल ने तीसरा मुतालबा कर दिया कि गर्मी की शिद्दत और सायदा दरख्तों और मकानों की रिहायत या मैसर ना होने की वजह से हम बहुत परेशान हैं। कि उन्होंने बोला सहरा में है, अब खुले आसमान के नीचे हैं, पीने को भी मिल रहा है, खाने को भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन मूसा अपने अल्लाह से दुआ करें कि हमारे लिए जो है ना मकान इसका ही बंदोबस्त किया जाए ताकि हम सुकून से हैं, बड़े परेशान हैं। ऐसा ना हो कि ये तपिश और तबादत हमारी जिंदगी का खात्मा कर दे। उन्होंने कहा बनी इसराइल ने मूसा से, और मूसा ने उनको तशफ़ी दी और फिर बाहर गए हमजद में अर्ज किया। अब बार बार जाते थे, उनको भी शर्मिंदगी की क्या करें, उनकी कौम जो थी एक वबा ले जाने उनके साथ थी, तो वो फरमाइशें की जा रही है। तो अल्लाह ताला से बार बार अर्ज कर रहे हैं कि यार मेरे इलाही परवरदिगार मेरी कौम की ये मुश्किल भी आसान कर दी। तो जब तूने उन पर बड़े बड़े नवाज और फजल करम की बारिश की तो इस सब तकलीफ से भी उनको निजात अता फरमाई। मुसलमान दुआ किए, आगे अल्लाह ने क्या मेरे परवरदिगार जब इतनी सारी आसानियाँ दे दी हैं तो मेरी कौम की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दीजिए कि उनको छत में ऐसा आ जाए, सहरा में सुकून से रहें, धूप की तमादत से बचें। तो मूसा की दुआ जो है सुनी गई और आसमान पर बादलों के परे के परे बनी इसराइल पे साया फजल हो गया। अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर बादल भी भेज दिए और उनके लिए पानी भी भेज दिया, उनके लिए मन भी भेज दिया, उनके लिए सलवा भी भेज दिया, उनके लिए बादल भी भेज दिए साया करने के लिए। मतलब कितनी मराते आफ्ता महबूब कौम थी, सोचें आप। और बनी इसराइल जहाँ भी सफर करते थे जैसे बादलों का साया जो है उन पर साहिबान की तरह साथ साथ उनके सर पर साया का फिक्र रहता था। तो पानी के चश्मे को जिक्र बनी इसराइल के वाक़यात में आया है। बहर अहमद के मशरक़ बेहमान में सुइस से ज़्यादा दूर नहीं, सुइस कनाल जो है जो अंग्रेजों ने बनाई आसमान डैम के वजह सुइस कनाल जिसको भी आप देखते हैं जो रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है, तो उसको जो है उस वक्त सुइस कनाल का तो वजूद नहीं था। तो जहाँ सुइस कनाल है इस वक्त तो उसके करीब करीब ये चश्मे थे जिनका जिक्र जो बनी इसराइल के वाक़ में आता है। तो बहर अहमद जो है रेड सी जो था उसके मशरक़ बयान सुइस से ज़्यादा दूर नहीं थी। अब भी ऐन मूसा हज़रत मूसा के चश्मे के नाम से मशहूर चश्मे आज भी हैं जो अय्यून मूसा के नाम से, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, नाम से इन चश्मों का पानी अब बहुत कुछ हो गया है इस वक्त और बास के तो आसार भी कदीम मादूम हो गए, तकरीबन खत्म हो गए। पर कहेंगे इन चश्मों पर आप खजूर के बागान नजर आते हैं, मतलब जो लोग उस तरफ गए हैं उन्होंने देखा हो तो उनके चीज़ें मिल पाती। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तुफैल बनी इसराइल जो था वो किसानात की मुसलसल बारिश होती है, सैकड़ों बरसी गुलामी से उनके अज़ाइम की पस्ती और अखलाकी कमजोरियाँ उम्मत है और शुजाअत की फुलदान ने उन पर जो मुस्तकिल मायूसी नाउमीदी तारी कर दी थी। इन खुदाई निशानात की बड़ी हद तक उनकी धरास बंदी रही, मगर अजीब फितरत कौम पर इसका भी काफ़ी असर न हुआ। उन्होंने अपनी नया मुजाहरा जो है उन्होंने अपनी उनको नई बातें सुनने लगी और उन सब ने जमा होकर जो है मुसलसल ने फिर को फरमाइश कर दी। अब जो मुसलसल उन्होंने नई फरमाइश की है वो अभी हम आपको बताएंगे। तो हम छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा। तो लाइव टीवी डॉट पे नियमित है रमजान नशियात ट्रांसमिशन में अंबिया का सफ़र। अभी हम वापस आते हैं, छोटा सा ब्रेक है, वापस।
since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटीरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि जो कि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सम लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आए और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि एक ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, वी-नेक और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी ईद पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटीरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ बिकॉज मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of our cinematic. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture करनी है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi, other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements,
وہ ہمیں بتاتے ہیں, ہم اس کو accordingly train کرتے ہیں and we give it to them, the cards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. वेलकम बैक नाज़रीन, आपको मेज़बान से इस्तेमानी आपको दोबारा खुश आमदीद कहता है लाइव TV.tv हम अम्बिया के सफ़र जिक्र हो रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और खातून अलैहिस्सलाम का, और इस वक्त में जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि बनी इसराइल जो थी कितनी ज़िद्दी कौम थी, नई नई चीज़ें सोचती रहती थी. पहले उन्होंने बस खाने पीने की चीज़ें मांगी तो मन और सलवा आया, फिर उनको जो है वो आके जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से की जाए अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम जो है सहरा में पड़े में सूरज की तपिश से हम झुलस जाएंगे, तो उन पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उन पर बादल में साहिब कर दी. तो खाने को भी मिल गया, पीने के लिए पानी मिल गया, पहले पानी मिला उन्हें, फिर खाने के लिए मानो सलवा मिला, फिर बादल में साहिब हो गए. लेकिन वो जो एक है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, और ख़ुसूसन बनी इसराइल अब उनको नई नई सूझने लगी. अब उन्होंने एक नई फरमाइश कर दी जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था. उनकी नई फरमाइश क्या थी ये भी आप सुनिए कि अब वो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उन्होंने बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम हम रोज़ जो है ना कि खाना खा के खा गए, रोज़ जो है हम बटेरे खा के और जो है मन खा के जो है मीठा खा के शीरा खा के हमारी तबीयत जो है भुलझल सुनने लगी. रोज़ एक खाना जब अच्छा नहीं लगता, तो हमको जो है वो मैंने सलवा की ज़रूरत नहीं है जो अल्लाह ताला आसमान से भेजा है. तो अपने खुदा से दुआ करो हमारे लिए ज़मीन से जो है खीरा, ककड़ी, मसूर, लहसुन, प्याज जैसी चीज़ें उगाए ताकि हम खूब खाएँ. बताइए आप आप सुने अल्लाह ताला वहाँ से उनके लिए खुराक भेज रहा है, बटेर भेज रहा है, मन भेज रहा है. तो उनको खा के उन्होंने बोला कि हमारी जो है ना अब जो टेस्ट जो है वो एक जैसे जो रोज़ खा करके हमारी तबीयत अजीब सी होगी, अब हमें लहसुन, प्याज और ककड़ी और इस किस्म की मसूर की दाल और इस किस्म की चीज़ें खाएंगे. तो मूसा अलैहिस्सलाम उनकी हरकत जो थी उनको जो है बहुत गुस्सा फरमाने लगे तो तुम भी किस कदर अहम कौम हो, एक उम्दा और बेहतरीन गज़ा को छोड़कर मामूली और घटिया किस्म की गज़ाओं की चीज़ तलबगार हो, और इस तरह खुदा की नेमतों के आसानात इनकार करो, कुफरान नेमत कर रहे हो. तो अगर वाकई तुमको इसी किस्म की फजूल चीज़ें खानी है जिसका तुमने जिक्र किया, जैसे मैंने भी बताया कि मसूर, लहसुन, प्याज, ककड़ी, तो तुम जो है निकल जाओ पास की बस्तियों शहरों में चले जाओ, वहाँ तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी, तुम वहीं जाके खा लेना. तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो है जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब कोहितूर पे गए थे, जब उसके बाद जब वो मिस्र पे अल्लाह के हुक्म से गए और फ़िरौन के पास गए दरबार में, तो अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया था कि जब अपनी कौम को बनी इसराइल को छुड़ा कर ले आओगे तो मैं तुमको शरीयत दूंगा, मतलब तो तौरात दूंगा. जैसे मैंने आपको बताया 1,24,000 अम्बिया में से 514 रसूल थे और 5 उलुल अज़्म से जो अपनी शरीयत लेके आए, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो 5 थे जो अपनी शरीयत लेके आए. और तो उनको तौरात की अल्लाह ताला ने वो बोला था, बशारत दी थी कि तुम अपनी कौम को जब फ़िरौन से छुटकारा लेके आओगे मैं तुम्हें शरीयत दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ज़िंदगी किस तरह. शरीयत मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन है अल्लाह की तरफ से कि क्या किस तरह ज़िंदगी इंसान ने गुजारनी है. तो हज़रत मूसा ने जब तो इस वक्त जब हज़रत मूसा ने वही इलाही के शास के तौर पर जब तूर पर वापस पहुँचे और वहाँ इबादत इलाही के लिए इत्तिकाफ़ किया. इस इत्तिकाफ़ की मुद्दत 1 महीना थी. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1 माह का इत्तिकाफ़ ख़त्म हुआ तो उन्होंने खुदा ताला से हम कलामी की तैयारी शुरू की. चूँकि मुसलसल 1 माह रोज़े ही में बसर किया, इसलिए मुँह में भूख महसूस करते थे. लिहाजा उन्होंने ये पसंद नहीं किया कि रब्बुल आलमीन से इस हालत में हम कलाम. उन्होंने खुशबूदार बूटी को
चबाया और खा लिया। तो फौरन वही लाइन में टोका, मूसा अलैहिस्सलाम तुमने हम कलामी से पहले रोज़ा क्यों इफ्तार कर लिया? और मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी वजह बयान कर दी। तब हुक्म हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम इस मंजर को 10 दिन बढ़ाकर 40 दिन कर दो। क्या तुम्हें मालूम नहीं हमारे यहाँ एक रोज़दार के मुंह की खुशबू मुश्क की खुशबू जो ज़्यादा महबूब हो, इस तरह ये चिल्ला जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने बजाय 30 दिन के फिर 40 दिन किया। और मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर चिल्ला कशी के लिए तशरीफ ले गए तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो कि उनके वसी थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से कि मुझे मेरा जो वसी बना दें और इनमें सारी खुशियाँ मौजूद हैं, क्योंकि मेरे ज़बान में लुकनियत है, मैं अपनी बयान में आऊँ नहीं कर सकता। लुकनियत के वाक़े में मैं आपको बताती हूँ ज़बान में लुकनियत क्यों आई थी कि मेरी हज़रत मूसा जो इसी तरह जो है उनकी ज़बान में प्रोनाउंसिएशन में उनकी प्रॉब्लम थी और हारून अलैहिस्सलाम जो है उनकी मदद करवाते थे। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले वो जो है अपने बनी इस्राइल को देखे चले गए कि इनको राहत पर रखे और उनकी मामला की रोज़मर्रा जो उनके मामला थे उनकी निगरानी करें। तो जब चिल्ला पूरा हो गया मूसा अलैहिस्सलाम का 40 दिन का, और अल्लाह ताला ने कलामी के शर्फ बख्शा और मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, खुदाया जब तुमने मुझको लज्जत और कैफ और समाते नवाजा तो फिर लज्जत से मुशाहिदा दीदार से क्यों महरूम हूँ, इससे भी सरफराज फरमा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अल्लाह कि अब आपने हर चीज़ में मुझे नवाजा है, तो अपना दीदार भी मुझे ख्वाहिश है कि वो भी मुझे कराई जाए। खुदाया तो आवाज़ आई, मूसा अलैहिस्सलाम तुम मुशाहिदा ज़ात की ताब नहीं ला सकोगे। अल्लाह ताला ने बोला तुम मेरी तजल्ली की ताब नहीं ला सकोगे। अच्छा देखो हम अपनी ज़ात की तजल्ली का ज़रूर इस पहाड़ पर करेंगे, अगर इस तजल्ली को बर्दाश्त कर ले तो फिर तुम ये सवाल करना। ज़ाहिर सी बात है कि मूसा अपनी तजल्ली का जो है इस पहाड़ को दूर पर हम करेंगे। अगर इस पहाड़ ने बर्दाश्त कर लिया, तुमने देखा इस पहाड़ ने हमारी तजल्ली को बर्दाश्त कर लिया थोड़ा सा, तो फिर तुम सोचने का तुम्हें ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसके बाद तो दूर पर हज़रत हक की तजल्ली का ज़रूर किया तो पहाड़ का हिस्सा ज़ेर हो गया, अल्लाह की ताब अल्लाह की तजल्ली। तो पहाड़ जो रेजर मूसा अलैहिस्सलाम के नज़ारे की ताब में लाकर पेश हो गए और गिर पड़े। जब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया तो उन्होंने खुदाए बढ़तर की हमदुसना की, अपने सवाल से रजू किया, कहा कि मैं इकरार करता हूँ, मान लाता हूँ तेरे जमाल की तजल्ली व इरफान और नमूज़ व हक़ में कोई कमी नहीं, नुकसान से मेरी अपनी हस्ती के अज्जा व बेचारगी का है। उसके बाद जब नज़ूल तौरात की तरफ हम चलते हैं, इस राज़ नियाज़ का मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की गई। हज़रत हक़ ने इनको हुक्म किया इसमें मजबूती से कायम रहो और अपनी कौम से कहना कि वो भी इन अहकाम पर इस तरह अमल करें जो अमल नेक जिस तरह ज़्यादा कर्ब लाइन का सबब बने, इसको दूसरे अमल में तरजीह दें। मैंने इस किताब में तुम्हारे दीन और दुनियावी फलाह की तमाम तफसीलात बयान कर दी हैं और हलाल और हराम और मसाइल गर्ज तमाम अमूर को खोल कर बयान कर दिया, यही मेरी शरीयत है। 12 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई और साथ ही ये भी बताया गया कि हमारा कानून ये है कि जिस कौम को हिदायत पहुँचने और उसकी ताकत पर दलाइल और रोशन मुझे वजह उसके बावजूद भी समझ न मिले, गुमराही और बाप दादा की बुरी रियत रस्म का काम रहे, उस पर इसरार करते रहे, तो फिर हम उसको उस गुमराही में छोड़ देते हैं और हमारा पैगाम यहाँ में उसके लिए कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। इसलिए उन्होंने कबूल की इस्तात की कुरान हकीम में भी इस हकीकत को इस अंदाज में बयान किया कि जो लोग नाहक खुदा की ज़मीन में सरकशी करते हैं, हम अपनी निशानियों से उनकी निगाहें फेर देंगे और दुनिया भर की निशानियाँ देख लें फिर भी ईमान ना लाएंगे। अगर ये देखें हिदायत की सीधी राह सामने है तो कभी उस पर न चलेंगे, अगर देखें गुमराही की टेढ़ी राह सामने है तो फौरन चल पड़ें। उनकी ऐसी हालत इसलिए हो जाती है हमारी निशानियों को झुटलाते हैं और उनकी तरफ से गाफिल रहते हैं, और जिन लोगों ने हमारी निशानियाँ झुटलाई और आखिर पेश आने से मुनकर हुए, उन सब उनके सारे के सारे काम हकारत हो गए और जो कुछ बदला पाएंगे उसके सिवा कुछ ना होगा कि उन्हीं की करतूतों का अपन लोग दुनिया में करते हैं। तो जो दुनिया में बोएंगे वही दुनिया में काटेंगे। इसी असना में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश है, इसकी हैरत अंगेज़ी भी कह सकते हैं और अफसोसनाक भी, और जिसने बनी इस्राइल की ज़हनियत और खिलाफी पस्ती बेनकाबों को सामने आ जाती है। यानी जबल तूर पर जब खुराम के पहाड़ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम से हज़रत नियाज़ ने मसरूफ़
और बनी इसराइल के लिए आईने लाई, तौरात हासिल करने में मशगूल थे। और नीचे वाली सेना में बनी इसराइल ने सामरी की क़यादत में खुद ही अपना मामूल गौशाला मुंतखब करके उसकी समाधि लगा दी और पुरतशिश परस्ती शुरू कर दी। वाकई की तफसीलात कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो तूर पर रात लेने के लिए तशरीफ ले गए तो बनी इसराइल ने फरमाया, मेरे तकाफ की मदद एक माह है, मदद पूरी होने पर फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। फारूक अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास मौजूद हैं, तो तुम्हारे अहवाल के निगरान है। तूर पर जाकर मुद्दत 30 दिन के बजाय 40 दिन हुई। इसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका क्यों हुई। इस ताक़त से एक शख्स सामने ने फ़ायदा उठाया। सामरी जादू का बड़ा मशहूर नाम है। उसने जब देखा बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ताक़त से मुज़रब हो रहे हैं तो उसने कहा, मुस्तरब हो रहे हैं तो उसने कहा, अगर तुम अपने तमाम ज़ेवर मेरे पास ले आओ जो तुमने मुस्लिमों से मुस्तार लिए थे और कोई वापस ना कर सके तो मैं तुम्हारे फ़ायदे की एक बात करूँगा। सामरी गो ज़ाहिर में मुसलमान था मगर उसके दिल में कुफ्र और शिर्क की नजासत भरी हुई थी। बस बनी इसराइल ने तमाम सोने की ज़रूरत लाकर उसके हवाले कर दिए तो उसने उनको भट्टी में डालकर गला दिया और उससे बछड़े का जिस्म तैयार किया और फिर उससे अपने पास से मुश्त खाक उसके अंदर डाल दी। इस तरकीब से बछड़े में आसार पैदा हुए, बछड़े की आवाज़ें जो है भाई भाई करने लगी। एक रवायत ये भी है कि जब ये जो रात थी जिसको सामने ने बछड़े में डाला और बछड़ा बोल पड़ा कि जब 13 दिन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा अल्लाह के हुक्म से मारा और वो 2 दीवारें खड़ी हुई और वो निकल पड़े तो आगे के जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे तो वो जा रहे थे। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तार बात लोगों को तो नजर ना नहीं सकते तो सामने जादूगर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे था तो उसको लग रहा था कि कोई चीज़ आगे मूव कर रही है और उसके निशानात पड़ रहे हैं। रिवायत तो मैं पता नहीं कितना सच्चे कितना तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने वो जो मिट्टी थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की घोड़े की समूह जिस पे वो सवार थे, जिस चीज़ पे भी सवार थे, जो निशान पड़ रहे थे उनके आगे चलने के नजर तो नहीं आ रहे थे, तो उसने मिट्टी उठा के अपने पास जो है वो महफूज कर ली थी और यही वो मिट्टी थी जो उसने उस बछड़े के अंदर डाली तो बछड़ा जो है वो बोल पड़ा। अब सामरी जादूगर ने जो है अब लोग जो है परेशान हो गए कि अब सामरी जादूगर ने जो है अपने जो है बोले बड़ो हो ये तो बहुत ही बड़ा कि मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन का वादा किया था और 40 दिन हो गए थे। सामने ने फ़ायदा उठा के अपनी बनी इसराइल जो पहली टामाटोल थे मतलब पक्के मुसलमान तो बने ही नहीं थे तो वो फिर सामरी जादूगर की तरफ ने बहुत उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। वो सामरी जादूगर के बछड़े की पूजा में लग गए और वो खराफात में वो जो है वो शामिल हो गए, बदतमीजी और खराफात में तकलीफ की थी उनको ये पूरा करें। नाज़रीन हम इस किस्से को अभी यहाँ रुकते हैं, दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन क्या करें वक्त की कमी और प्रोग्राम का एक वक्त होता है तो अम्बिया के सफ़र के इस किस्से को हम यहाँ रुकते हैं और इंशाअल्लाह कल दोबारा से हम जो सलाम ने यहाँ पर ख़त्म रुका है हम दोबारा से शुरू करेंगे और इसके बाद जो है हम जो है वो एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जो है आप हमारे 2 प्रोग्राम देखेंगे। एक तो हमारा कुकिंग शो है जो आप देखेंगे आज पकड़ा है कहा क्या उसमें फरिया जहाँ है उन्होंने चिकन सिजलर बनाने की कोशिश की है, देखिए वो उन्होंने कैसा बनाया है और क्या रेसिपी बनाई है तो आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की मूवी का पार्ट 7 भी हम मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो नाज़रीन हम ब्रेक पे जाते हैं और इन 2 प्रोग्राम्स के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे तो देखते रहिए LiveTV.tv पे नियमित रमज़ान नशियात और इंशाअल्लाह इन 2 प्रोग्राम्स के बाद आपका मेज़बान दोबारा हाजिर होगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सलाम।